हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल 10 मिनट क्लास। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। हाउ डू आई पिक स्टॉक्स? Often retail investors think that this is a knowledge, this is a skill that can only be acquired by those people who are sitting out there in mutual fund houses. सिर्फ उन्हीं institutional investors के लिए ये knowledge है जो reserved है, and this is something that a retail investor, a normal individual cannot understand. And this is the most misunderstood concept that I wish to break out here. All that information that I'll share here with you today is going to be a summation of, is going to be a compilation of each and everything that Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch, Rakesh Jhunjhunwala, Dr. Vijay Malik, all of these seasoned investors preach and follow. So if interested in knowing the correct way of finding and picking the right stocks for you for long-term investments, stay tuned because we are starting right now. आपको टाइटल से समझ आ गया होगा कि there are 4 steps that we must follow in finding a good stock. So all of these steps are not in any particular order and all of these are equally important. ये चारों के चारों pillars हैं जो हमें एक good investing buying decision लेने में help करेंगे. So इन चारों का होना बहुत important है. अगर इनमें से कोई एक भी weak निकला, then our buying decision would be a big mistake. Hence, I request you and urge you to watch this video till the end so that you know each and every step that you must follow in making a good buying decision for your investments. जो भी चारों के चारों steps मैं आपके साथ share करूंगा, just a quick tip, ये सभी steps के साथ मैं वो extremely actionable things भी बताऊंगा जो आप carry out कर सकेंगे just after having watched this video. So the first step in this whole process would be conducting financial analysis. ये बेसिक बैकबोन होगा आपके बाइंग डिसीजन का. दिस विल बी द फर्स्ट फिल्टर एज सेड बाय वॉरेन बफे फॉर योर बाइंग डिसीजन. जब आप एक कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज कर रहे हो, यू मस्ट गो डीप इनटू हाउ डज इट वर्क. बट आप हर एक कंपनी के साथ ऐसा नहीं कर सकते. देयर आर 5000 कंपनीज दैट आर लिस्टेड इन बीएसई. हर एक के डिटेल में जाना इज इम्पॉसिबल. हेंस हम फाइनेंशियल एनालिसिस को हमारा फर्स्ट फिल्टर की तरह यूज करेंगे टू फिल्टर आउट ऑल दोस कंपनीज हु डज नॉट meet our criteria. Financial analysis में हम analyze करेंगे 3 financial statements को: profit and loss, balance sheet and cash flow statement. Now wait, for all those who do not belong to a commerce background, आपको लगेगा कि भाई अब सारी चीजें बाउंसर जाएंगी and you will not be able to understand this. But believe me, हम financial analysis में सिर्फ 2 ही चीजें को analyze करेंगे. One would be ratios and second would be growth rates. And even if you belong to a non-commerce background, आपको ratios निकालनी आती है, आपको compute करनी आती है, उनको समझना भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा. And second, growth rates को interpret करना भी is completely easy. So profit and loss statement को analyze करने के लिए हम सिर्फ 3 चीजों को ही पकड़ेंगे. सबसे पहला, sales growth. We would want that our company is growing its sales for the past 5 to 7 years at a growth rate of 15%. 15%. एक कंपनी तभी अच्छी मानी जाएगी अगर उसकी टॉप लाइन, उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं. जस्टिफाइड, राइट? सेकेंड थिंग वुड बी प्रॉफिटेबिलिटी. वी वुड ऑल्सो वांट कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रोइंग एट 15% CAGR फॉर द पास्ट 5 to 7 years. हम सेल्स ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी इसलिए मेजर करेंगे क्योंकि अगर सेल्स ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छा कर रही हो. सेल्स ग्रोथ होने के 2 कारण हो सकते हैं. फर्स्ट, ईदर the company is really producing good products, उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं and the value that it is creating for its customers is supreme, which is why उनकी organically sales growth हो रही है. लेकिन दूसरा रीजन हो सकता है for sales growth is inorganic reasons. One common example would be high advertising. अगर एक कंपनी अपना बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कर रही है टू अट्रैक्ट एंड ल्योर एज मच कस्टमर्स एज पॉसिबल, तो पिछले 5-6 सालों में देखें उसकी सेल्स जरूर इंक्रीज होगी लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी बिकॉज उसके एक्सपेंसेस भी उसी सेल्स के साथ इंक्रीज होंगे. हेंस उसकी प्रॉफिटेबिलिटी विल नॉट ग्रो एज फास्ट एज इट सेल्स, which is a red flag for any company. तीसरी और आखिरी चीज P&L स्टेटमेंट में होगी टैक्स. We would want that the company is paying its taxes properly. अगर वो अपने taxes को सही amount में नहीं पे कर रही, then again it is a red flag for any investor. We would want कि जो भी वो tax rate पे कर रही है, it is in congruence to corporate tax rates. So let's say एक company lie करती है 20% corporate tax rate के bracket में, then it must pay between
18 to 22% of tax throughout the years. We do not want a company paying only 10% taxes जब उसका टैक्स रेट 20% तक है. This is a red flag. So प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस तो हो गया. अब हम एनालाइज करेंगे अपनी बैलेंस शीट को, एंड बैलेंस शीट के एनालिसिस में देयर इज ओनली वन रेशियो व्हिच वी मस्ट क्लोजली वॉच, एंड दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू total borrowings या फिर total debt that a company has taken divided by its total equity. ये हमें बताएगा कि एक कंपनी कितना ज्यादा डेट अज्यूम कर रही है अपनी इक्विटी पे, एंड आई सजेस्ट कि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी एटलीस्ट 0. यस, इन स्टार्टिंग यू वुड वांट कि एक कंपनी मिनिमम टू मिनिमम डेट ले. आप मैक्सिमम 0.5 तक का भी एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा इज अ बिग रेड फ्लैग फॉर यू एज अ रिटेल इन्वेस्टर. और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज डेट इज द ओनली रीजन व्हाई कंपनीज डिक्लेयर बैंकरप्सी और बिकम इंसॉल्वेंट, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर डेट प्रॉपर्ली. एंड फाइनली हम आ जाएंगे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट पर. कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है कि हमें किस किस सोर्सेज से अपने बिजनेस में कैश फ्लो आ रहा है. कैश फ्लो 3 सोर्सेज से आता है, ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. हमें सिर्फ ऑपरेशन से मतलब है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बताएगा कि एक कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हो रहा है, एंड वी मस्ट ओनली इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज जिन कंपनीज का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन over past 5 to 7 years is positive. So हमारा first step of financial analysis is done. हमने financial analysis के थ्रू डिसाइड कर दिया, कंक्लूड कर दिया कि पिछले 5-6 सालों में उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही. लेकिन क्या पास्ट परफॉर्मेंस गारंटी कर सकती है कि वो फ्यूचर में भी उसको सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं? दैट्स नॉट ट्रू, विच इज वाई हमारा सेकेंड स्टेप आ जाएगा, एंड दैट is business and industry analysis. Business and industry analysis में हम एनालाइज करते हैं कि एक कंपनी अपने सराउंडिंग्स के कंपैरिजन, अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में अपनी इंडस्ट्री में कहां स्टैंड करती है. इसी को डिटेल में समझने के लिए बेंजामिन ग्राहम कॉइन्ड अ टर्म नोन एज इकोनॉमिक मोट. अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूं, सो इकोनॉमिक मोट इज दैट इकोनॉमिक एडवांटेज दैट अ कंपनी हैज ओवर इट्स कंपेटिटर्स, बट दैट इज बुकिश. इसको लेमैन की लैंग्वेज में समझने के लिए वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट कंपनी, पिडिलाइट. फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, पिडिलाइट इज द कंपनी व्हिच प्रोड्यूसेस फेविकोल, एंड उन्होंने अपनी एक ऐसी इकोनॉमिक मोट बना ली है कि फॉर द नेक्स्ट 10 to 20 years वो अपने पास्ट हिस्टोरिक परफॉर्मेंस को सस्टेन कर पाएगी. सो लेट्स से आप एक कंज्यूमर हो और आप मार्केट में जाते हो. क्या आपने कभी भी अपने शॉपकीपर को ऐसा कहा है कि भैया मुझे एडहेसिव दे दो या भैया मुझे गम दे दो? नेवर, राइट? एंड दैट इज हाउ पावरफुल ब्रांडिंग, दैट इज हाउ प्रोमिनेंट द इकोनॉमिक मोट ऑफ पिडिलाइट इज. हम जब भी एज अ कंज्यूमर एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, वी ऑलवेज से भैया फेविकोल दे दो, एंड वी नो दैट फेविकोल इज नेम ऑफ द ब्रांड एंड नॉट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट. यहां पे वी मस्ट नोट कि देयर इज अ कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट. You see, you as a customer are not willing to switch between Fevicol, a good branded adhesive, with that of its competitors. And यही रीजन है उनकी इकोनॉमिक मोड का. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. What are its actionable steps? How do I, as a retail investor, know कि एक कंपनी का एक इंडस्ट्री में इकोनॉमिक मोड है कि नहीं? इसका कोई एक आंसर नहीं है. And there's a lot of subjectivity around this thing. इसीलिए I'll be making a separate video just for this. Hence I request you कि do subscribe to the channel so that whenever any new video comes out related to any of these steps, आप notify हो जाओ. Third step in this whole process is gonna be management analysis. Now although मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि all of these 4 steps are equally important, but I must say कि management analysis always has an upper hand over these 3 steps. इसके लिए we will take an example. लेट्स से आपके पास 5 करोड़ हैं. दीज आर योर लाइफ टाइम सेविंग्स, एंड आप ये सारे के सारी अमाउंट एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं. इवन आफ्टर यू इन्वेस्ट 5 करोड़ ऑफ योर लाइफ सेविंग इन दैट वेरी कंपनी, आप फिर भी उस कंपनी के 1% से ज्यादा ओनरशिप स्टेक को ओन नहीं कर पाओगे. इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ? इसका इंप्लीकेशन ये हुआ कि आपका जो भी से होगा मैनेजमेंट के डिसीजन से रिलेटेड, दैट विल गो अनहर्ड, बिकॉज आप सिर्फ 1% के ओनर हैं, एंड जो वहां प्रोमोटर्स बैठे हैं, जो वहां सीनियर मैनेजमेंट बैठी है कंपनी की, दे ओन मोर देन 51% ऑफ ओनरशिप इन दैट कंपनी. बेसिकली मीनिंग कि यू आर इंटरेस्टिंग
or your lifetime savings on the decisions made by that top management. Hence, उनका हर एक decision आपकी lifetime savings को impact कर सकता है. उन्होंने कोई भी decision लिया जो आपके against हो, आपकी lifetime savings will be at huge risk. इसका मतलब यही हुआ कि जो भी promoters हैं या जो भी senior management है, all of them are shareholder friendly. All the steps that they take are in congruence to whatever is good for the shareholders, whatever will build the wealth of shareholders, वही डिसीजंस उन्हें लेने चाहिए. आपको मैनेजमेंट एनालिसिस के पीछे थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इनसे रिलेटेड एक्शनेबल स्टेप्स 4 हैं. 4 बेसिक स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप होगा जस्ट गूगल इट. गूगल कर दो उस कंपनी का नाम एंड उसके आगे लिखो फ्रॉड. लेट्स से रिलायंस फ्रॉड, रिलायंस स्कैम. अगर आपको गूगल के पहले 10-12 रिजल्ट या अगर डिटेल्ड एनालिसिस करना है, आगे भी चल जाओ. इफ यू फाइंड एनी न्यूज related to company scamming its customers, its shareholders or anybody, that must be a red flag. आपको डिटेल में जाके समझना पड़ेगा what exactly did happen. Was the promoters, were the senior management actually at fault? अगर वो थे, then it is a big red signal जो आपकी wealth को बहुत ज्यादा harm कर सकता है. Second step would be a good management succession plan. Although अभी तक उस कंपनी के प्रोमोटर्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, लेकिन अगर उस कंपनी के पास अच्छा सक्सेशन प्लान नहीं है जो फ्यूचर में उस कंपनी को वही सेम प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर ना कर पाए, देन योर मनी इज गोइंग इन रॉन्ग हैंड्स. यू वुड वांट एक ऐसी कंपनी जिन्होंने सक्सेशन अपना ऐसे प्लान किया है कि जो भी पास्ट परफॉर्मेंस रही है उसी को वो फ्यूचर मैनेजर्स भी बहुत अच्छी तरह से सस्टेन कर पाए एंड दे कंटिन्यू टू बिल्ड वेल्थ फॉर यू. थर्ड स्टेप वुड बी सैलरी ड्रॉन. What is the salary जो promoters और senior management draw कर रही है over the past years? इसके लिए annual report में जाओ, just type Ctrl F and वहां पे लिखो salary. 10-12 रिजल्ट आएंगे, skip through them and एक कॉलम आएगा जहां पे लिखा होगा कि हर एक प्रमोटर ने कितनी सैलरी ड्रॉ की. इस सैलरी को डिवाइड कर दो net profit of that company for that year. The percentage that you get should not exceed 4%. अगर वो percentage for the last 5 years सेम रह रही है और they're maintaining it between 2 to 4%, it is a good sign. लेकिन अगर वो 4% से ज्यादा जा रही है, then it is bad for you. And I'll tell you why. Let's say एक कंपनी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 5 सालों से डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं यही प्रमोटर्स और सीनियर मैनेजमेंट, इट इज इंक्रीजिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉलिंग प्रॉफिट्स. एंड इवन लॉस के टाइम पे भी अगर वो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज अ बिग रेड सिग्नल. मीनिंग कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं एंड फ्यूचर शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोच रहे. फोर्थ एंड फाइनल स्टेप वुड बी डिविडेंड पे आउट रेशियो. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज अगेन अ रेशियो वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अपने प्रॉफिट्स का कितना पार्ट वो एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं. A good healthy dividend payout ratio should be around 30%. There's no ballpark figure, but what you must be finding out is over the past year, dividend payout ratio क्या उन्होंने maintain किया है कि नहीं. If it is maintained and if it is increasing, it means कि promoters अपने shareholders के बारे में अच्छा सोच रहे हैं. Whereas अगर वो dividend के form में payout बाहर नहीं देते and वो profits को अपने पास कंपनी के अंदर रख रहे हैं, there are high chances कि उस पैसे का misuse होए and eventually you are the one who will suffer. And finally, हम अपने fourth and last step पे आ गए, that is valuation analysis. इसको मैं क्रक्स में समझाने के लिए वॉरेन बफे को कोट करूंगा. उन्होंने कहा था, I'd rather buy a good company at a great price rather than buying a great company at a good price. इसके पीछे का रैशनल समझते हैं. आप एक कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करते हो? You only invest to get returns. आपका मेन मोटिव सिर्फ रिटर्न्स को जेनरेट करना है, राइट? And वो returns तभी generate होंगे if you buy a company at a great price. Great returns will only come if you buy a company at great price. Good price पे एक कंपनी को buy करने से सिर्फ good और decent returns ही मिलेंगे. इसी को प्रूव करना चाहेंगे हम रिलायंस का एग्जाम्पल लेके. फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत अच्छा, ओवर द पास्ट 5 to 7 years उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी है. उनकी सेल्स भी ग्रो हुई है, उनके प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छी तरह ग्रो हैं, उन्होंने टैक्स भी सही दिया है. बिजनेस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस के हिसाब से भी उनकी बहुत अच्छी इकोनॉमिक मोट है. उनके पास जियो है, दे ऑल्सो डील इन पेट्रोकेमिकल्स, उनका जियो मार्ट है, उनके अपने रिलायंस के स्टोर हैं, एंड ये सारा का सारा दे हैव अ गुड मोट फॉर देयर ब्रांड अराउंड देम. हेंस सेकंड क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया. मैनेजमेंट एनालिसिस में भी सुपर्ब. मोटा भाई इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन
India has ever seen. तीनों क्राइटेरियाज आर टोटली ग्रीन. एक बाइंग डिसीजन जरूर है, लेकिन अगर हम फोर्थ स्टेप देखें, वैल्यूएशन एनालिसिस, वी मस्ट रियलाइज कि रिलायंस इज करंटली ओवरप्राइस्ड. सो आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर रिलायंस में इन्वेस्ट भी करते हो, नो डाउट द कंपनी इज रियली गुड, लेकिन वो आपको रिटर्न नहीं देगी. व्हाई? बिकॉज इट इज ओवरप्राइस्ड. वैल्यूएशन एनालिसिस उसको अप्रूव ही नहीं करता. अब इसका एक्शनेबल स्टेप क्या हुआ? वैल्यूएशन एनालिसिस कैसे कैरी आउट करें? इसके बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं. डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन एंड मेनी मोर. रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल भी है. आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए. ऑल्दो इन सब से रिलेटेड वीडियो जरूर आएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज पता होनी चाहिए, एंड दैट इज इन्वेस्टर्स बेस्ट फ्रेंड, PE रेशियो. PE ratio is ratio, current market price divided by earnings per share. ये बताएगा कि एक शेयर ओवरप्राइस है कि नहीं. If PE ratio is high, it means currently the stock is trading at very high valuations. If PE ratio is low, it means कि जो स्टॉक है वो अभी थोड़ा undervalued है. इसके लिए I'd give a ballpark figure of 10. I would only invest in those companies जिनका PE ratio 10 से कम हो. इसके पीछे का रीजन इज वेरी वेल लेड आउट बाय बेंजामिन ग्राहम, बट उसको समझाना 5 मिनट में इज नॉट पॉसिबल. हेंस उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा. हेंस डू सब्सक्राइब. एंड दैट इज इट. ये 4 स्टेप्स हो गए, लेकिन वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुआ. दिस 2 थिंग्स दैट आई वांट यू टू डू. फर्स्ट, सबसे पहले आप जाके कमेंट सेक्शन में बताओ कि आउट ऑफ दीज 4 स्टेप्स दैट आई शेयर्ड विद यू, which one of these did you find most unique? Do let me know in the comments कि कौन सा सबसे ज्यादा आपको अपीलिंग लगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस को प्लान आउट करूंगा. सेकंड थिंग दैट आई वांट यू टू नो इज अंडरस्टैंड कि इतने ज्यादा क्राइटेरिया जो मैंने आपके सामने पुट फॉर्थ किए हैं, इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड वन गुड स्टॉक इन 1 ईयर. जी हाँ, अगर आपको 2 साल में भी एक अच्छा स्टॉक मिल जाए विच इज वर्थ इन्वेस्टिंग, believe me, that is a miracle, because that does not happen so often. But still, you would want कि आप थोड़ा से पैसे तो इन्वेस्टेड तभी भी रखें. You do not want कि आप 2 साल तक वेट करते रहें कि कब एक अच्छी कंपनी अच्छे प्राइस पे आए, मैं तभी उसको बाय करूं. You would want to stay invested for those 2 years as well. इसी के लिए there is a video that I created for index investing strategy. This video is what I am talking about. इस वीडियो में मैंने 28% CAGR रिटर्न अचीव किया using index investing strategy. Lowest risk with 28% CAGR achieved, and this strategy is back tested. So yeah, do check this video out, and if you did enjoy watching this video, like, share, subscribe. Till then, take care, happy learning.